Winters are round the corner and so are the examination. Examination आते ही examination pressure बढ़ने लगता है. Hello, I am Shubha and you're watching my channel Life Lessons and Teaching Skills with Shubha. नवंबर दिसंबर आते ही स्कूल्स में एग्ज़ामिनेशंस स्टार्ट हो जाते हैं एंड एग्ज़ामिनेशन का नाम सुनते ही बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस वाली क्लासेस दैट इज़ 10th एंड 12th में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स एंड टीचर पे भी प्रेशर डेवलप होने लगता है. एग्ज़ामिनेशन तो बच्चे 6th 7th 8th 9th एंड 11th सारे क्लास में देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रेशर बिल्डिंग बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में होती है. सो लेट्स डिस्कस ऐसा होता क्यों है. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? इज़ द प्रॉब्लम एग्ज़ामिनेशन, द स्टूडेंट, द टीचर्स, पेरेंट्स, और या फिर इवैल्यूएशन सिस्टम हमारा? सो इन दिस वीडियो टुडे जॉइन अस एंड वॉच टिल द एंड, जिससे कि हम इवैल्यूएट कर सकें कि प्रॉब्लम कहाँ है एंड बच्चों का प्रेशर हम कैसे कम कर सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स, वाई एग्ज़ामिनेशन? एग्ज़ामिनेशन क्या होना चाहिए? क्या बिना एग्ज़ामिनेशन के भी स्कूलिंग पूरी हो सकती है? सो जब एक बार ये सोच कर देखिए अगर एग्ज़ामिनेशन नहीं हो तो क्या होगा. सो माई सिंपल क्वेश्चन टू ऑल द स्टूडेंट, if there are no examinations, will you ever, honestly सोच कर देखना, will you ever prepare your studies the way you do when there are examination? And I'm sure the answer is no, because कोई भी नहीं पढ़ेगा. So to evaluate yourself, to evaluate you, whether you are able to learn the next higher level ऑफ एजुकेशन, आप इसके लायक हैं भी कि नहीं, एग्ज़ामिनेशन होते हैं. सपोज़ आपको मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर ही क्लियर नहीं है, हाउ कुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड द हायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स? सेम अप्लाई टू ऑल द सब्जेक्ट्स. एंड ऑल्सो जब आप एग्ज़ामिनेशन में अपेयर होते हैं, सो योर लर्निंग बिकम बेटर बिकॉज यू रिवाइज, एंड व्हेन यू रिवाइज then you realize yourself what are the problem points, what are the strong points, what are the learning this problematic area of your learning. So इन सारी चीज़ों के लिए एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी है. एंड ऑल्सो सेल्फ असेसमेंट. अगर एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका साइंस अच्छा है या आपका मैथ्स अच्छा है, और you can write good, आपका language strong है. How would you come to know if there are no exams, no marking system, no evaluation system, no question answers? So examinations are a very important part of schooling. Okay, well, now there is a sheet. Take the screenshot and do it yourself 2-3 times. किस टाइप के एग्ज़ाम को आप एक्सेप्ट करते हो, इनमें से किसको और किसको यू रिजेक्ट? समेटिव एग्ज़ाम्स, येस और नो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? 2 मेजर्स एग्ज़ाम्स इन एन एकेडमिक ईयर, अगेन येस और नो? क्लास टेस्ट, यू राइट लाइक दैट और नो? सरप्राइज टेस्ट, डू यू लाइक? एंड प्रैक्टिकल्स, द फाइल्स, द प्रोजेक्ट्स, you yes or no for you? And no marks for guessing it right. When I do this live in schools, most of the children say no for the major exams and the surprise test and also for the summative exams many times. Well, now the question comes, ये 10th and 12th exams में आते ही इतना प्रेशर क्यों होता है? When there are home exams, the children are not that much afraid in giving the examination. The parents are not worried. So let's open up your mind. You also think while watching, आपको इसमें से क्या लगता है? The method of examination, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का जो मेथड है, is that the reason that causes pressure inside you? Think and write in the comment box.
so that we can do a proper evaluation. Is it the method of evaluation of board exam that scares you or that causes anxiety? Second is the marking system. I mean, like if you are awarded grade, if the board exams gives you grades, only grades, will that make the things much easier or better? The marks, 90% marks, 80% marks, 82% mark, is it that scares you or causes you a lot of pressure? Again, write in the comment box. Or is it the method in which the result is declared? Like whenever there is an exam, the whole home exams, your results are declared very privately to you and your parents, and it's up to you आप उसे कैसे लेते हो. अगर कम भी अच्छा है तो पेरेंट्स हाउ डू दे से कि लाइक ठीक है, सबको नहीं पता. बट व्हेन इट इज़ बोर्ड एग्जाम्स, योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, द एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीबडी थिंक वेट्स फॉर योर एग्जाम रिजल्ट एंड एवरीबडी आस्क कि कैसा रहा बोर्ड में एग्जाम. इज इट द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट स्केयर्स यू और कॉजेस प्रेशर ऑन यू? Now let's see in a student's life what are the possible pressure points. So इसके पहले कि हम pressure points डिस्कस करें, हमें ये देखते हैं कि आप प्रेशर हमेशा ही बुरा होता है. No, I would say sometimes pressure is necessary. Say for example, अगर प्रेशर कुकर में प्रेशर नहीं होगा तो खाना भी नहीं बनेगा. एंड सिमिलरली अगर फ्यूल का प्रेशर नहीं होगा तो कोई भी व्हीकल आगे मूव नहीं करेगा. इन द सेम वे, टू मूव अहेड इन योर लाइफ वी नीड सम काइंड ऑफ प्रेशर, वेदर इट इज़ प्रोफेशनल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ. प्रेशर की थोड़ी ज़रूरत ज़रूर होती है. दैट प्रेशर शुड कम फ्रॉम द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, फ्रॉम पेरेंट्स एंड फ्रॉम टीचर्स ऑल्सो. सो इस प्रेशर को आपको हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेशर ठीक से नहीं हैंडल करोगे, बहुत ज़्यादा लोगे, देन एंजाइटी विल डेवलप, विच इज़ नॉट गुड. सो लेट्स सी कि प्रेशर पॉइंट्स हमारे कहाँ से आ रहे हैं, मेजर प्रेशर पॉइंट्स स्टूडेंट लाइफ में कहाँ से आ रहे हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना है. सो द फर्स्ट प्रेशर दैट यू स्टार्ट डिवेलपिंग इन यू इज़ द peer group. मीन्स आपके फ्रेंड्स. योर फ्रेंड्स आर डूइंग, मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स आर गेटिंग मार्क्स इन 90s और आपके 80s में आ रहे हैं या 70s में आ रहे हैं. सो बिना किसी के कहे ही आप अपने अंदर एक फेयर सा ले लेते हो कि जब बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा सो सबके 90s में होंगे एंड मेरे लिटिल लेस होंगे. सो इंस्टेड ऑफ देन वर्किंग टूवर्ड्स इट, फाइंडिंग सम रीज़न, फाइंडिंग सम वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आप ये सोच के अपने अंदर एंजाइटी डेवलप करना शुरू कर देते हो और रिजल्ट और उल्टा होने लगता है. तो कैसे हैंडल करना है, दिस वे विल डेवलप लर्न लेटर. दूसरा प्रेशर पॉइंट देखते हैं, टीचर्स. वेल, अब टीचर्स वुड से कि हमारा तो काम ही है बच्चों को पढ़ाना, उन्हें प्रिपेयर करना, उन्हें बार बार टेस्ट देना, और बार बार टेस्ट देने से आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है. पर एक बार सोच कर देखो, क्या टीचर्स का आपको प्रेशर डालना क्या सच में गलत है? No, they are doing it for your good. So if your teacher is trying to put some more efforts, take it positively. अगर आप पॉजिटिवली लोगे एंड जैसे वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, you start working that way, आप इंस्टेड ऑफ एंजाइटी डेवलप होने के your performance will get better. और जैसे ही आपके मार्क्स थोड़े से अच्छे आने लगेंगे और द लेवल आप लाना चाहते हो उसके तक आने लगेंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग मच बेटर, रिलैक्स फील करोगे. तीसरा प्रेशर पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा हम सब के पास आता है वो है पेरेंट्स. अनदर पेरेंट्स वुड से कि मैम आप कैसे बात करो, क्या हमारा बच्चा है, हमें तो बात ही उसको रोज़ कहना कि और पढ़ो और अच्छा लाओ. सो कई बार क्या होता है कि दे आर योर वेल विशर, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा वेल विशर आपका कोई है ही नहीं पूरी लाइफ में. एंड सम टाइम आप उनको ही गलत मानने लग जाते हो, क्योंकि प्रेशर तो आता है पेरेंट्स की तरफ से. सम टाइम मे बी बिकॉज ऑफ द सिबलिंग्स
आपके ब्रदर ने अच्छा किया, आपसे बड़े ब्रदर ने, आपसे बड़े सिस्टर ने अच्छा किया, एंड यू आर बीइंग कंपेयर्ड ऑल द टाइम, नॉट इंटेंशनली बट जस्ट टू टेल यू, दे कीप टेलिंग यू, देखो इसने ऐसा किया, इसके 90% थे, तुम्हारे 70 ही आ रहे हैं. So that also develop pressure. So we are talking only about the pressure points. How to do handle it, we will discuss later. Then the college admission. This is also something very important when the cause of pressure when you are in class 12th. Because class 12th में आते आते you start looking for the career options. You start searching the website. And आपके प्री बोर्ड और 11th में और इन सब में आपके 70s and 60s में आ रहे हैं, and you're seeing that college admissions are getting closed at 78 and 80. Reason to worry. And when there is a reason to worry, the pressure will develop. And with the pressure, if you don't handle it carefully, the anxiety will develop. So अभी क्या करना है? OMG, so much pressure. हर तरफ से, मम्मी से, पापा से, बड़े भाई बहन से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से और खुद से भी. अब ये प्रेशर ठीक से नहीं हैंडल हुआ, सो एंजाइटी डेवलप होगी, और उसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर होने की जगह और डिफ़िकल्ट होती जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर एंजाइटी अंदर है तो आपने जो कुछ भी याद किया है वो आप भूलने लगोगे. आपको याद होगा, प्रिपेयर्ड होगा, लेकिन एंजाइटी डेवलप होने की वजह से जब आपने परफॉर्म करना है, जब लिखना है, उस समय वो दिमाग से स्लिप हो जाएगा. सो इसे हैंडल करना बहुत ज़रूरी है. कैसे करें? सबको ही आपको बताता होगा, टीचर्स, पेरेंट्स, ट्यूटर्स. प्लानिंग, रेगुलरिटी, सेल्फ असेसमेंट, एंड मैं एक चीज़ और भी ऐड कर रही हूँ, फ्री टाइम एंड फेथ इन योरसेल्फ. प्लानिंग, इतना सिलेबस इस वीक में, इस डेट में, इस सब्जेक्ट को इतना कंप्लीट करना है, 2 चैप्टर्स, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर. वो टाइम टेबल, प्लानिंग आपने अपने हिसाब से बनानी है, बिकॉज यू नो योर सेल्फ बेस्ट, नॉट बिकॉज योर ट्यूटर इज सेइंग, नॉट बिकॉज योर टीचर्स आर सेइंग. हाउ मच यू कैन मैनेज, डू दैट. Regularity. This is, children, very, very, very important. If you are not regular in your studies, you are going to suffer at the last moment. Even if you are sure कि आपको ये सारा सब चैप्टर, आपको कल जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से याद है, जिसका टेस्ट है, even then if you sit for 2 hours of study, you sit. आप कुछ भी पढ़ो, you just read it. You read something else, but you sit for your studies. Regularity is the most important thing during school studies. Self assessment. बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसके पहले प्री बोर्ड होंगे, उसके पहले एक और प्री बोर्ड होगा, आपके क्लास टेस्ट होंगे, ट्यूशन में टेस्ट होंगे. वो उन सारों के मार्क्स देखकर, वो शीट्स देखकर, उसमें जो भी आपकी गलतियाँ आई हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उन सबको देखकर you assess yourself, because your test and teachers and the tutors are going to tell you only about where you were wrong and how you are going to correct it. This you can do by self assessment. Free time. अभी आप कहोगे कि जब भी खाली बैठते हैं तो somebody start saying कि 4 हफ्ते रह गए बोर्ड एग्जाम and you're sitting like this, you're doing this. Make it clear to them, talk to your parents, because you need free time. You can see it. आपने बहुत बारी देखा होगा कि फुल ग्लास विच इज़ फुल अप टू द लेवल विद वाटर, उसमें आप और पानी नहीं डाल सकते, इट विल स्पिल आउट. सेम वे इफ़ योर माइंड इज़ फुल, सारे उसमें आप और फिर बैठ कर पढ़ोगे तो इट विल नॉट गो इन टू योर माइंड. आप सिर्फ बुक्स खोल कर देख रहे हो एंड वॉट यू आर रीडिंग इज एक्चुअली नॉट गोइंग इन साइड. सो सिर्फ बैठे रहना नहीं ज़रूरी है. If you can manage your studies in 5 hours, you give 5 hours only. The rest of the time, you relax. And relax करने का ये मतलब नहीं है that you start watching movies or you start spending chatting time with your friends. Do something positive, relax, do yoga, go outside, watch some beautiful videos or
रिलैक्स द वे इन विच यू फील लाइक, जो भी आपकी हॉबी है, बट रिलैक्स. डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. दिस इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग, बिकॉज ये तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी देगा. यू कैन नॉट टॉप एवरी टाइम. इस बार ही आप हमेशा से क्लास में मैथ्स में बेस्ट मार्क्स लाते थे, 90s में लाते थे, 98 99 लाते थे. इस बार आपके 90s में 92 91 है, एंड देयर आर 4-5 चिल्ड्रन हु हैव गॉट 96 98. सो व्हाट्स. इसी एक टेस्ट या एग्ज़ाम में अगर दूसरे आपसे अच्छा कर रहे हैं या ओवरऑल उन्होंने आपसे अच्छा कर लिया, दैट्स ओके. दैट्स अ सिंपल एग्ज़ाम. दिस नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि अगर आपने इस बार टॉप नहीं किया तो बहुत कुछ हो जाएगा. सो डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ कि आप फिर दिन रात एक करके पढ़ने में लगे. डोंट डू दैट. यू शुड बी गुड इनफ. आपका जो कैपेबिलिटीज़ है उतने मार्क्स लाने हैं. हमेशा टॉप करना है या हमेशा हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं. डोंट डू दिस टू यू. कई बार ये होता है कि बच्चों के मार्क्स कॉन्स्टेंटली बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी 50s या 60s में ही आ रहे हैं. एंड देन दे स्टार्ट, बिकॉज आसपास लोग कहने लग जाते हैं, मे बी टीचर्स और मे बी पेरेंट्स समटाइम. अनफॉर्चुनेटली हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ही ऐसा है और हमारे यहाँ एडमिशन सिस्टम भी ऐसा है कि दे स्टार्ट फरिंग, एंड फिर वो अपनी बात बिना किसी ज़्यादा ध्यान के आपको पास ऑन कर देते हैं. क्या होगा तुम्हारा, व्हाट विल यू डू विद सच मार्क्स, कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा. एंड ये सारा आपके अंदर जाने लगता है. एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग वेरी नेगेटिव कि अगर ऐसे ही हुआ तो मुझे तो कोई एडमिशन नहीं मिलेगा. डोंट थिंक दैट. देयर आर मेनी ऑप्शंस. स्टार्ट लुकिंग. जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आई एम सेइंग गिव योर बेस्ट टू स्टडीज़. बट ऐसा नहीं है कि जिनके 55 एंड 60s में मार्क्स आते हैं उनको कुछ ऑप्शन नहीं है उनके लिए. देयर आर ऑप्शंस फॉर एवरीबडी. यू शुड गिव योर बेस्ट in 10th and 12th board exams, but don't worry, अगर नहीं आ रहे मार्क्स, that's not the end of the world. कुछ नहीं होगा, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे. But again I'm saying, give your best, be honest to yourself. एक और भी ट्रेंड भी है, हर एक चीज़ का ट्यूशन लेना. इस मैथ्स के ट्यूशन से आए, साइंस में चले गए, साइंस के ट्यूशन से आए, लैंग्वेज में चले गए. I mean, like children, you are wasting time. School studies are very good if you give proper attention in the class, discuss in the class, ask your teacher. But still, if you think that you need some personal guidance from the tuitions, take tuitions, but not more than 2, because you will be wasting a lot of time and energy going to the tuition center or studying from. फिर आपको सेल्फ असेसमेंट का टाइम नहीं मिल पाता, आपको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल पाता. योर माइंड इज टायर्ड ऑल द टाइम एंड यू फील प्रेशर कि अभी कल जाना है, अभी इतना हो गया, अभी ट्यूशन का होमवर्क करना है, अभी क्लास का होमवर्क करना है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर बिजी इन अटेंडिंग ट्यूशंस एंड कंप्लीटिंग होमवर्क. सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता. तो कीप योर ट्यूशन क्लासेस मिनिमल 1 or 2. Think positive. Don't think negative. This is the main thing that can reduce pressure from you and can help you learning better. अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और एंजाइटी होगी, आपकी लर्निंग डे बाय डे स्लो ही होती जाएगी. सो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, सो कीप वर्किंग हार्ड एंड थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन. ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है जो कि डिस्कस ना किया जा सके. प्रैक्टिस दीज थिंग्स एंड आई एम श्योर आपका एंजाइटी लेवल ज़रूर कम होगा. बट स्टिल इफ़ यू फील एंशियस and you feel a lot of pressure, you can always take help of the professional counselor, because you should be very much relaxed when you enter into examination hall. So all the best for your examination. Do well, be blessed. Share with the friends so that they can also be benefited by this video.